This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference. Assalamu alaikum. And welcome to Eid Special. Guestos, bite it. अपर्णा तुका कितें दिसता ईद म्हटलें की तेचें कितें म्हत्व अशें दिसता? ईद म्हटलें की चिकन बिर्याणी and शीर कुर्मा. अपर्णा खाणा फुडें आनी कांयच सुचना. ईद म्हटलें की ते कितें म्हणटा चिकन बिर्याणी नाजाल्यार शीर कुर्मा. ओके, अपर्णा म्हणटा तशेंच करुया आमी. तुमी खंयच वचूं नाकात. आमी आतां चिकन बिर्याणी खावपाक वचोया. Ramzan, one of the major Muslim festivals, marks the end of fasting month, Ramadan. It falls in the 9th lunar month according to Islamic calendar, following the appearance of new crescent moon. The auspicious occasion is celebrated by Muslim community not only in India but all over the world. Eid Ramzan is also known as Eid ul-Fitr and sometimes plainly referred as Eid. It is said to be the most holy month in the Islamic calendar. Niyaz means communion. Now it's Niyaz with food. It's a contemporary design restaurant in the heart of Panjim. The three dishes considered to be their house specialities are dum biryani, mutton rogan gosh and mutton keema Mughlai recipes cooked in Muslim homes and made famous in district of Belgaum. Let's take biryani. So, I will have chicken dum biryani. मेनू कार्डान पळयता मुगो कितें आसा तें. अपर्णा, हांव वेज बिर्याणी घेता. वेज दम बिर्याणी. And I will go for chicken dum biryani. ओके, एक वेज बिर्याणी और एक चिकन बिर्याणी. Dum biryani is a special dish made on the occasion of Eid ul-Fitr. It is a non-vegetarian dish which is made by using desi ghee, chicken or mutton and variety of spices. Its ingredients are easily available in the market. ना शाबाश. एकदम डबल वैल्यू था. मग स्टार्ट करूया आमी. Start. मला बिर्याणी सगळ्यांत चड आवडटा म्हळ्यार दीस फ्रायड ऑनियन. टेस्ट ऑसम. आतां हांव खावन पळयता मुगो ती. क्लासीक टेस्ट आसा गो अपर्णा. प्युअर घीचो एकदम फ्रेशली टेस्ट ऑसम. बट अपर्णा एक सांगता तुका, अशी बिर्याणी हांवें खंय खावंक ना अशी इतली टेस्टी. You might say for a veg biryani. हा, Biryani with a chicken is so empty. तूं म्हाका कितें सांगता तेचेर लक्षच ना खरें सांगपाचें म्हटल्यार. How can you be veg throughout? Yeah. अरे तीच तर म्हाजी कमाल आसा. म्हाका आवडटा वेज. I go and stay without chicken and fish. अशें कांय नासता केन्ना. तूं म्हणटा तशें चिकन इतलें टेस्टी आसा तितलेंच वेजूय टेस्टी आसता.
you know, people come here especially to eat this dum biryani and not veg biryani. असो गो पण व्हेज बिर्याणी तितलीच बरी आसा हं. पनीर वाव. अपर्णा सगळे व्हेजिटेबल्स आसात. पनीर, काजू, मटर. अरे बाप रे. म्हाका दिसता तुझ्या चिकना परस माझी व्हेजूच बरी अशी दिसता. अपर्णा ही व्हेज बिर्याणी इतली टेस्टी आसा. तो हो जो करणारो शेफ आसतलो पण भितर न्हू त्याच्या कडल्यान म्हाका शिकपाक जाय. No, no, no. This is Eid special episode and I can't go in for veg biryani. असो व्हेज ना तरी चिकन तरी चिकन घेऊया आम्ही. You can't will do. व्ह्युअर्सांक दाखवूया मगो कशी केल्या ती. इतली स्पायसी आहे ना. इतली स्पायसी ना गो चड पण Possible. This is our first try at Niyaz and the aroma seems to be very good. We are testing out with our kid. He is a foodie actually and he likes to eat biryani. He is very fond of biryani. So actually he is our first trial basis and then definitely we will try come again in evening to taste different varieties of kebabs and biryani. But what we heard a lot about Niyaz and it's a good restaurant. I really love the spicy chicken biryani and we are now at Niyaz's kitchen. We have Chef Rabul with us who will show us how to prepare this biryani. चिकन धो के लेते हैं पहला. बाद में उसमें नमक डालते हैं. नमक डालते हैं. बाद में थोड़ा हल्दी, थोड़ा रेड चिली पाउडर है और ये जितना गरम मसाला है मिक्स पाउडर बन के यहाँ में रखे हैं इसको. अभी उसमें क्या क्या डाला है आपने इसमें ये मसाला सब है. ये सब यानी इसको पाउडर बना के उसमें रखे से इसमें डालते हैं. उसके बाद कोतमीर, थोड़ा कोतमीर डालते हैं, थोड़ा पुदीना डालते हैं, फिर थोड़ा लहसुन पेस्ट डालते हैं. लहसुन का पेस्ट है. फिर इसका अदरक का पेस्ट डालते हैं. उसके बाद हरी मिर्ची का पेस्ट डालते हैं. इसमें सिर्फ हरी मिर्ची दूसरा क्या नमक या नहीं क्या नहीं. हरी मिर्ची डालते हैं. इसके बाद थोड़ा तेल डालते हैं और उसके बाद ये घी, तेल देसी घी देसी घी. अविनाश हां तुका सांगताले देसी आई घी. एम गेटिंग द स्मेल ऑफ देसी घी. इसको मैग्नेशन करते हैं. इसको ये सब खोल के लेना है. हाँ, इसको ऐसा मैग्नेशन करके ये 1 घंटा रखते हैं उसको. हाँ. 1 घंटा रखे बाद है अभी आपने कितना चिकन लिया है? ये 3 किलो होगा. 3 किलो है. 3 किलो. अभी ये कितने आदमी को लगता है? कितने आदमी के लिए? इसमें 21 आदमी खा सकते हैं. 7 आदमी 1 किलो में खा सकते हैं. 7-8 तक 7-8 आदमी खा सकते हैं 1 किलो. हाँ. अभी 1 घंटे में इसे बाहर ही रखना है या इसको नहीं बाहर भी रखे चलता है. The flavors of ginger, garlic and chili hit the senses as the cooking takes place in the kitchens. 1 घंटे के बाद इसमें दही डालने का. दही डालने के बाद और थोड़ा देर नहीं रखता है उसको. नहीं रखता. अभी दही कितना डालने का इसमें? दही इसमें 1 लीटर डालने का. 1 लीटर दही डालने का. इसको अच्छे से इसको मिक्स करने का. दही को नहीं वो मसाला खींचना हो. चिकन को मसाला नमक है उस ये हरी मिर्ची अदरक लहसुन खींचता है. दही डाले तो नहीं खींचता है. और इसलिए उसको क्या करते हैं ज़्यादा देर दही रहा तो खट्टा भी जाता है और खट्टा भी होता है. इसीलिए उसको मैग्नेशन करके पहले रखते हैं. बाद में उसको दही डालते हैं. नहीं हम उड़ीसा के. अभी आप कितने साल ये हम 15 साल हुआ है बना. 15 साल में न्याज में काम किया. बिरयानी. आप ये कहाँ से सीखे हो ये सब बिरयानी करने का? कहाँ सीखे? वही होटल से गांव से काम कर रहे थे सीखे. फिर यहाँ आके थोड़ा सीखना मिला. हाँ. आप इधर कितने साल से काम? हम यहाँ से 15 साल काम करते हैं न्याज में.
ये इसको दही मिक्स करके इसके ऊपर कांदा फ्राई डालने का है, इसके ऊपर ऐसा कांदा मारने का है। ये कांदा अपने डीप क्या फ्राई कांदा में फ्राई खुद तेल से कर हाँ और लेकिन सिंपली कट करके लिया है कट और नहीं नमक डाला है नहीं क्या खाली सिर्फ कांदा सिर्फ कांदा है कांदा इसको भट्टी में रखना है ऐसा। बाद में इसमें पानी में नमक डालता हूँ पहला। बाद में इसमें अक्खा मसाला डालता हूँ थोड़ा, अक्खा हुआ मसाला थोड़ा मिक्स कर डालता हूँ इसमें। खड़ा मसाला यही चीज़ है। हाँ और थोड़ा हरी मिर्ची डालते हैं इसमें। ऐसा ही है हरी मिर्च डालने का अक्खा नहीं पेट वगैरह कैसे नहीं। करने के लिए। और थोड़ा से साजिया डालते हैं पानी में। इसमें एक बार तो चावल डालता है इसमें। आपने वो शाही जीरा क्यों डाला है अंदर? पानी में थोड़ा डालते हैं, पानी में थोड़ा डालते तो खुशबू थोड़ा आता है उसमें, उसको अलग से खुशबू आता है। राइस में आता है। इसको अभी हाफ बॉईल करने का, हाँ हाफ बॉईल करके थोड़ा नीचे डालने का, हाँ उसके ऊपर थोड़ा बिरिस्ता मारने का। हाँ उसके बाद फिर फिर थोड़ा बॉईल हुए बाद उसके ऊपर डाल के यानी एक नीचे नीचे ऊपर राइस फिर से मैरिनेशन डालने का, उसके ऊपर फिर से राइस डालने का और वो पकाने का। हाँ नहीं वो दम में पकता है, दाल में पकते हैं। दम में पकता है। ये जो चिकन नीचे रहा है हाँ। वो नीचे से वो पकता है दम में। अभी इसको 10 तो 15 मिनट लगेगा। हाँ ये तो 5 मिनट लगता है, 10 मिनट भी है। तो इसका दम में 20 मिनट रखता हूँ। it will take almost 10 to 15 minutes for the rice to get cooked. रबुल साहब मुझे आपको एक पूछना था, मैंने बहुत बिरयानी करते हुए देखा है लेकिन किसी को मिर्ची डायरेक्टली राइस में डालते नहीं देखा है। वो राइस सेपरेट बनाते हैं, मसाला सेपरेट बना के ले आते हैं। नहीं ये इसको बोलते हैं दम बिरयानी। अच्छा सो ये हमें दम बिरयानी बना रहे हैं। वो सर जो करते हैं वो फ्राई पैन में जो मारते हैं वो बिरयानी बराबर टेस्टी का नहीं आता, उसमें मज़ा नहीं आता खाने में। ओके अभी जो हमें मसाला मैरिनेशन कर रखे है हाँ वो मसाला खींचेगा, वो खाए तो उसका टेस्ट अलग रहता है। दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ रबुल साहब जो जिन्होंने राइस में भी मिर्ची डाला है एंड ऑल द स्पाइसेस इन राइस आल्सो, सो बोथ आर टेस्टी, द राइस एंड द मसाला टू। दो लुक्स वेरी इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। Oh my god, and the high flame. रेडी है ये? हाँ रेडी है। पूरा डालने का? नहीं आधा चावल डालो, आधा चावल। आधे चावल मार के उसमें बिरिस्ता मारने का है, हाँ कांदा फ्राई। बाद में फिर चावल डालना।